علیکم. پروگرام اختلافی نوٹ میں جناب بابر امان صاحب کے ساتھ میں ہوں لینا الیاس, اور آج کی سب سے ٹاپ سٹوری اور بڑی سٹوری جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید بی بی نے مریم نواز کو ایک ریلیف دیا تھا. وہ ریلیف کیا تھا بابر صاحب, ذرا روشنی تو ڈالیے گا اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میرے ہاتھ میں پنجاب کا بجٹ ہے. پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے جو پنجاب کے مخدوم اعلیٰ, خادم اعلیٰ یا پنجاب کے جو شہباز شریف یا اپوزیشن کے مطابق شہباز شریف جو بھی ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا, ان کی گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ٹیکس نہیں لگے. یہ جھوٹ ہم نے ان کے کاغذوں سے پکڑا. وہ جھوٹ ہم پنجاب کے 12 کروڑ اور پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ وہ جھوٹ کیا ہے. یہ جو شہید بی بی والی سٹوری ہے, اس کے ساتھ ایک آپ کو ہم ویڈیو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ شہید بی بی نے کیسے مریم نواز کو ریلیف دیا, اور ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے. لیکن پہلے میں سب سے شروع کرتا ہوں جو جھوٹ کی داستان پنجاب کے 9 سرباز بجٹ میں سے ہم نے پکڑی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کوئی ٹیکس نہیں لگا. شہروں میں جائیداد کی قیمت کا 5% اور دیہات میں 3%, یہ سٹیمپ ڈیوٹی کی شکل میں ٹیکس. سٹیمپ ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ جائیے 5% آپ پہلے جا کے سرکار سے خریدیے جو نان جوڈیشل پیپرز ہیں, اس کے اوپر ڈیوٹی ادا کیجیے, اور 3% خریدیے آپ دیہات میں. یعنی دیہات میں یہ ٹیکس کبھی بھی نہیں تھا 70 سال میں, کیا پچھلے 300 سال میں جب سے مالیے کا نظام بنا, اور یہ تو زیادہ عرصے کا مالیہ کا نظام بنا ہوا ہے, اور کبھی یہ ٹیکس نہیں تھا. یہ پنجاب کو برباد کرنے کی ایک سکیم ہے جس میں صرف غریب لوگ آئیں گے, بڑا آدمی کوئی نہیں آئے گا. میں کیوں کہتا ہوں صرف غریب لوگ آئیں گے, اس کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں. دوسرا, 5 لاکھ تک کی جو بھی آپ انسٹرومنٹ رجسٹر کریں گے, یہ دستاویزات ہوں گی. میں اور آپ معاہدہ کرتے ہیں, میرا اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے, اس کمپنی کا کسی اور کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے, اس پہ رجسٹریشن کے لیے 5 لاکھ سے زائد پر 1000 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گی. یہ کہتے ہیں جی ٹیکس کوئی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو 2 ٹیکس, ایک شہر کا ایک دیہات کا بتا دیا, 5 لاکھ تک کی دستاویزات کی رجسٹریشن کا بتایا, اور پھر آپ کو 5 لاکھ سے زائد کا بتایا. اگلا جو ہے وہ 20 سال سے کم مدت کی جائیداد لیز, جس کو کرایہ کہہ لیں آپ آسان زبان میں, اس پر 3.25%, اور اس سے اگر زائد ہوگی تو اس پہ 5.25% سٹیمپ ڈیوٹی کی شکل میں ایک اور ٹیکس لگ گیا. یہ کہتے ہیں جی ٹیکس فری یہ بجٹ تھا. اچھا, پھر اس میں جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ آگے جا کے میں نے کہنی ہے تفصیل سے تھوڑی سی, وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. ریلیف کس کو ملا ہے؟ سب سے پہلے ریلیف انہوں نے دیا ہے جی اپنے جو بڑے ڈیولپر ہیں, بڑے بڑے قبضہ گروپ اور بڑے بڑے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں, ان کو ریلیف ملا ہے. اس لیے کہ پنجاب میں صرف انہوں نے ایک کہا تھا آشیانہ اسکیم, اور اس کے اربوں خربوں روپے کھا پی کے بھاگ گئے, اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آشیانے کدھر گئے اور وہ اسکیم کدھر گئی ہے. جس طرح سے پیلی ٹیکسی اسکیم تھی, اب ایک اور ٹیکسی اسکیم آ رہی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے قرض اتارو ملک سواروں کی اسکیم تھی, یہ کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارتے, ایسا نظام ہے. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو ڈیولپرز کے اوپر ٹیکس لگا ہوا تھا, ہم بتا چکے ہیں کہ مرکز میں پہلے وہ سمدی صاحب ہٹا چکے ہیں, اب خادم اعلیٰ صاحب نے, چھوٹے پاجی نے وہ ٹیکس اپنے دوستوں کے اوپر سے ہٹا دیا ہے, اور ایک ایک کو بلایا گیا ہے, باقاعدہ بلایا گیا ہے کہ جناب اے دیکھو ہن اسی کر رہے ہیں, اور تھوڑا ٹائم آئے گا الیکشن نہیں تسی بھی کرنا ہے. اور جو ایک بڑا انویسٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے, یہی کر سکتا ہے کہ الیکشن کا خرچہ سارا پکڑ لے اور اٹھا لے, اور پھر دوبارہ گورنمنٹ میں لانے کی کوشش کرے کہ ایک دفعہ پھر مجھے ریلیف ملے گا. یہ پہلا کام انہوں نے کیا. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جب ہم تعلیم کے شعبے میں جائیں گے, پنجاب کے بجٹ کا آج ہم نے کھل کے پوسٹ مارٹم کرنا ہے قوم کے سامنے, اور پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے سامنے میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں, بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, وہاں جو دوسرا انہوں نے کیا ریلیف وہ یہ ہے کہ جو اصلی سکول ہے نا, جن میں سے ہم لوگ پڑھ کے نکلے ہوئے اور سارے پڑھتے ہیں, جو پاکستان کا اصلی ایک صحیح معنوں میں کلچر تھا, اس کی بجائے انہوں نے اپنے دوستوں کے سکولز کو نوازنے کے لیے ایک سکیم کا اعلان کیا. کتنے ہمارے جو دیہاتی سکول ہیں, کتنے ہمارے جو شہری سکول ہیں, کتنے ہمارے جو گورنمنٹ سکول جن کو کہتے ہیں, ان پہ کیا خرچہ ہوگا, اور دوستوں کے سکولوں میں داخلے کے لیے, یعنی پرائیویٹ سکول میں داخلے کے لیے گورنمنٹ پیسے دے گی. کتنے پیسے دے گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو تیسرا اور سب سے بڑا انہوں نے ریلیف دیا ہے, وہ ریلیف انہوں نے دیا ہے اپنی ملوں کو اور اپنے جو تاجر فرینڈز ہیں ان کو انہوں نے ریلیف دیا. اب اس پرسپیکٹو میں یہ میں نے سارا لوگوں کے سامنے نقشہ کھینچا ہے.
آئیے گا کہ ہم چلتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں نوثر بازی کی داستان جس کو بجٹ کہا جا رہا ہے، اس کی جھوٹ کی داستان ہم نے جو پکڑی، پہلا اس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی، ٹیکس لگے ہیں کہتے ہیں ٹیکس فری، ڈیوٹی ہو تو وہ بھی ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ٹیکس نہیں ہے، وہ ٹیکس ہے، بالکل ٹیکس ہے۔ اچھا پھر نام بدلنے سے یا بوتل کے اندر پیلا شربت ہو، اس کے اندر کالا شربت ہو، اس کے اندر سرخ شربت ہو، تو ہے تو شربت ہی نا اس کا نام۔ اس سے پہلے میں ایک پاز لے کے 1 منٹ میں صرف بھمبر ہے جی، یہ میرے علاقے پوٹھوار کے ساتھ، پوٹھوار وہاں بھی پوٹھواری بولی جاتی ہے، بھمبر کے بے شمار ہزاروں سے زیادہ لاکھوں میں بھی کہا جا سکتا ہے میرپور اور بھمبر کے لوگ وہ بیرون ملک ہیں، وہاں سے زر مبادلہ جو 20 ارب سالانہ پاکستان کو آتا ہے بھیجنے والے ہیں، وہاں اساتذہ تھے ایڈ ہاک بھرتی ہوئے اور ان پہ آج لاٹھی چارج ہوا ہے اور ان کے اوپر آج گیس پھینکی گئی ہے، روزے کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں اختلافی نوٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ بروٹلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہی مہینہ ڈھونڈا اور اس کے نوکری کے بجائے ان کو لاٹھی مار کے آج گھر بھیجا گیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہوتا ہے، یہ تو کھلے ہوئے جی۔ اچھا جی، دوسرا پہلو اس کا آج یہ خسارے کا بجٹ ہے پنجاب میں، کہتے ہیں سب سے بڑا لمبا چوڑا بجٹ، جو خسارے کا مطلب ہے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ میری آمدنی سے جو زیادہ خرچہ ہے وہ میں بتانے لگا ہوں کہ مثلا میری آمدنی ہے 100 روپے دہاڑ یا میری آمدنی ہے 1000 روپے دہاڑ، تو اس 1000 روپے میں 1000 کما کے میں کتنا خرچہ کروں گا، اوپر اس کے وہ 1 سال کا جو خطرہ ہے وہ 117 ارب 10 کروڑ اور 9 لاکھ روپے کا خسارے کا بجٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑا بہترین بجٹ ہے، ہم نے تو تاریخ بنا دی، تاریخ یہ ساری کی ساری جو بنا رہے ہیں وہ اس کو ایک معاشیات میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا، کہتے ہیں اس کی زبان میں، معاشیات کی زبان میں کہتے ہیں فزیکل فراڈ، یہ مالیاتی دھوکہ دہی، مالیاتی واردات اور یہ مالیاتی گھوٹالہ جس کو کہا جا سکتا ہے، یہ وہ ہے۔ اچھا پھر انہوں نے جو 12 کروڑ سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے، عام آدمی کے علاج کے لیے انہوں نے پتہ ہے کتنے پیسے رکھے؟ کتنے؟ 20 ارب روپے۔ 12 کروڑ کے لیے 20 ارب روپے، 20 ارب روپے، یہ تو 4 آنے کی ڈسپرین ہوتی تھی کسی زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کتنے کی ہوگی، وہ بھی نہیں ملے گی، ملتی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اورنج ٹرین کے لیے جو صرف چند 100 لوگ لے کے جایا کرے گی ایک طرف سے، چند 100 لوگ دوسری طرف سے واپس لایا کرے گی، اور پوٹھوار جس میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بھول گئے، سینٹرل پنجاب کے یہ علاقے جو میاں والی کی طرف جاتے ہیں، جو بکر کی طرف جاتے ہیں، جو جوہر آباد جاتے ہیں، ان کو یہ بھول گئے، اور جنوبی پنجاب کو بھی بھول گئے۔ ہمیں دعا دی ہے، انہیں سلام دیا ہے، اور باقی اپنے آپ کو انہوں نے پیسے دے دیے اپنے حلقے میں۔ وہ پیسے کتنے ہیں؟ عام آدمی کے علاج کے لیے پورے پنجاب میں صرف 20 ارب روپے رکھے گئے، لیکن اورنج ٹرین کے لیے ایک لائن جو لگانی ہے، اور اس کی وجہ مجھ سے پوچھے گا میں بتاؤں گا آپ کو، اس کے لیے 90 ارب روپے، 20 کا ڈبل ہوتا ہے 40 کا ہوتا ہے 80، اس کے بھی اوپر 10 ڈال کے انہوں نے 90 ارب روپے اورنج ٹرین کے لیے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جتنے پیسے اور چاہیے ہوں گے باقی جگہ سے نکال کے دیں گے، اپنی جیب سے تو انہوں نے کبھی کسی کو ٹیڈی پیسہ نہیں دیا، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو اور پیسے بھی ہم دیں گے۔ اب آپ سوال کیجئے کیوں؟ اس کے اوپر کیوں ذرا بڑی کریں، اس کے اوپر کیوں؟ کیونکہ جواب بڑا ہے میڈم، وہ اس لیے کہ کک بیک ملتا ہے، اس لیے کہ کمیشن ملتا ہے، اس میں کٹ ملتا ہے، اس میں دھاندلی کی جا سکتی ہے، اس میں اپنا سریہ لگایا جا سکتا ہے، اس میں اپنا جنگلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں اپنے ٹھیکیداروں کو نوازا جا سکتا ہے، اس میں سے پیسہ نکال کے پاناما بھیجا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک ادھر ٹاور برآمد ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک فلیٹ نکل سکتا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، یہ وہ ملک ہے جس کو یہ کہتے ہیں یہ ان کے دور میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ آج 45 46 47 کے قریب اسلام آباد اور گرد و نواح میں جو بتا رہا ہے محکمہ موسمیات وہ گرمی ہے، اس کی وجہ یہ 70 سال میں کبھی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ پورا اسلام آباد انہوں نے جنگلہ بنا دیا، سریا بنا دیا اور کنکریٹ کا جنگل بنا دیا، کبھی یہ درختوں کا شہر ہوتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ علاج کے بعد ہے پانی۔ پانی اس پورے پلانٹ آف ارتھ کے اوپر، کرۂ ارضی کے اوپر 65% پانی ہے، انسانی جسم کے اندر 65% پانی ہے، ہم جس لہو کے اوپر، خون کے اوپر زندہ رہتے ہیں اس میں 65% پانی ہے، جو زمین میں سے فصلیں نکلتی ہیں، زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور زمین کے باہر جو فروٹ پیدا ہوتے ہیں ان میں واٹر کانٹینٹ 65% ہے۔ اچھا، یہ جو 65% واٹر از لائف انگریزی میں کہتے ہیں، پانی زندگی ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے اور بنیادی چیز جو کبھی مفت ہوا کرتا تھا اور کبھی صاف ہوا کرتا تھا، اب اس کو گندا کر دیا گیا انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے۔ پچھلے بجٹ میں 30 ارب روپے رکھے گئے تھے، اس میں سے خرچ کتنے ہوئے؟ لیٹس ہیو اے گیس ورک۔ سر ہو گئے ہوں گے 25 26
थोड़ा और बढ़ा लें, 28 अरब हो गए होंगे, कम नहीं कर सकती मैं, इतने तो लगने चाहिए क्योंकि लाहौर के हालात बहुत 2 अरब 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जी टोटल 30 अरब में से। सर आप गलत बता रहे होंगे, दोबारा चेक कर लें। 2 अरब 14 करोड़ रुपए 30 अरब में से। अच्छा जी, और इस बार 25 अरब रखा गया है और यकीनन ये इनकी प्लानिंग के मुताबिक इंशाल्लाह सारा जाया करेंगे। करते क्या है, मई का महीना जब आता है, इस दफा इन्होंने वारदात ये डाली कि मई में बजट दे दिया, 15 मई तक जो पैसे खर्च नहीं होते स्पेंडिंग वो वापस करनी पड़ती है जी, और अकाउंट फार करना पड़ता है, ये पैसे मैं खर्च नहीं कर सका जी। तो 2 अरब 14 करोड़ बीच में से निकाल दीजिएगा, तकरीबन 27 अरब रुपए जो साफ पानी के मसले में पंजाब में खर्च होने। साफ पानी का तरीका क्या है, साफ कुआं हो, साफ पानी का तरीका क्या है कि नहर साफ हो, उसमें से लोग भर के पानी पीते हैं। साफ पानी का तरीका क्या है कि वाटर रिजर्वायर्स बनाई जाएं, छोटे डैम बनाए जाएं। कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ क्या था, एक कंपनी है जी, उसको ठेका दिया जा रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें से 2 लफ्ज वो हैं जो कश्मीर के लफ्ज में आते हैं जी, और इंग्लिश के लेटर्स, और एक वो है जो मेरे नाम में आता है, एक दफा नहीं आता 2 दफा आता है। अब आप समझ गए होंगे, इसको ठेका दिया जा रहा है। अच्छा 2014 में जो जुनूबी पंजाब है उसके लिए साफ पानी की अथॉरिटी बनाई गई थी, बिल्कुल बनाई गई थी, जिसे 3 माह पहले शहबाज शरीफ ने करप्शन के इल्जाम में बंद कर दिया गया। ये करप्शन करवाई किसने, ये किसके नीचे हुई, ये बनाई किसने थी, बंदे उसके किसने लगाए? इन्हीं के दौर में बनी थी। दौर नहीं है ना जी, कोई आदमी में तो बैठा होगा ना, बिल्कुल बैठा हो, तो उसी आदमी की जिम्मेदारी है ना। जब करप्शन हुई जी, वो कहता है कि नलका लगे, कहीं डेंगू का स्प्रे हो तो मेरी तस्वीर लगा दो, करप्शन हो तो फिर आपका तो वहां एक लंबा सा पोस्टर बना के तस्वीर का लगाना पड़ेगा ना। इसलिए कि अगर कोई काम होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, नहीं होता तो उसका जिम्मेदार फिर मैं हूं, बिल्कुल उसके जिम्मेदार भी आप हैं। और अगर किसी जगह पे आप कहते हैं जी कि हमने तेजी से जंगला लगा दिया, लग गया, और जिसका नहीं लग सका उसका जिम्मेदार कौन है, फिर आप हैं। अच्छा जी, फिर ये अब जो फिगर है ये मेरे पास करेक्ट है, वो अब कहा जा रहा है ये कि रिपोर्टेडली 120 अरब रुपए में जो काम होने वाला था, अब ये काम होगा 190 अरब में। 70 अरब रुपए का टांका इसमें उसका इजाफा किया गया। अब इसके बाद पहला था सेहत, दूसरा था पानी, और तीसरा है स्कूल। स्कूलों की क्या हालत है, चाहूंगी आप बताएं, अगर आप एक ब्रेक लेने की इजाजत दें तो वापस आते हैं, थोड़ा लोगों को भी इंतजार बजट है भाई, जो मैंने कभी नहीं कहा, पंजाब के सारे लोग अपना बजट सुनिएगा। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ वारदात होगी, आपके साथ हाथ हो गया, सुन लीजिएगा ताकि आप बोल सकें, एहतजाज कर सकें, कोई पोस्ट कर सकें, लिख सकें, ट्वीट कर सकें, या हमें कुछ भेज सकें। इसी नोट पे लेते हैं इख्तिलाफी नोट में छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत
नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सर को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमालों को गिरा दो। में हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ
कितना मुख्तस किया गया है बजट, और अगर मैं आवाम की डेफिनेशन चाहूँ बाबर साहब आपसे और मुख्तस की डेफिनेशन चाहूँ तो वो भी जरूर बताइएगा अगर वक्त मिले तो। जरूर। ये स्कूलों की हालत ज़ार पे हम पहुंचे थे। अब हम बात करेंगे 1 करोड़ 16 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं पंजाब में। 1 करोड़ 16 लाख बच्चे पंजाब के स्कूल से बाहर हैं, यानी उनके लिए तालीम नहीं है। और आइन का आर्टिकल 19 है जिसमें लिखा हुआ है कि तालीम मुफ्त देगी और गारंटी करेगी हुकूमत। वो मैं जब लॉ मिनिस्टर था उस दौर में वो आइन का हिस्सा बना। अब 2015-16 में स्कूल्स के लिए डेवलपमेंट बजट 44 अरब रुपए रखा गया था पंजाब में, जिसमें से सिर्फ 19 अरब रुपए खर्च हुआ है, यानी आधा भी नहीं हो सका जी। सर ये भी झूठ है वहाँ पे। 44 का 22, ये मानने को दिल नहीं चाहता। मैं खुद कहता हूँ कि ये भी बिल्कुल गलत फिगर है। लेकिन आप देखें ना इनकी आनियां जानियां देखें, ये अपने इलाज पे कहाँ जाके किस तरह से इलाज कराते हैं। सेहत तब ठीक होगी जब अस्पताल में दाखिल होगा शहबाज शरीफ, जब अस्पताल में जाएगा नवाज शरीफ, जब अस्पताल में जाएगा परवेज खटक, जब अस्पताल में जाएगा बाकी सारा पाकिस्तान का सियासी एलीट जाएगा। उनको तो जुकाम हो जाए अगर बाहर जाते हैं, परवेज खटक वैसे नहीं जाते होंगे इसलिए कि उनको जुकाम होता कोई नहीं, वो काम करने वाले मेहनती से बंदे हैं और पतले हैं बड़े। अच्छा, जो 2016-17 में 2016-17 का बजट उसमें रखा गया 63 अरब, सिर्फ 33 अरब खर्च हो सका। ये मैंने आपको 15-16 बताया और 16-17 जो गुज़श्ता 2 साल थे। इस वक्त 57,998 स्कूल हैं पब्लिक, जिनमें से ये वो जो गवर्नमेंट के स्कूल जिनको कहते हैं ताकि आसान जुबान में बात करें लोगों को समझ आ सके, जिनमें से 17,023 की 4 दीवारी है और बाकी आप 57 में से निकाल दीजिए कोई 40,000 ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी मौजूद नहीं है। अच्छा, सिर्फ 6,620 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने का साफ पानी इस वक्त पंजाब में मुयस्सर है, यानी 57,998 में से 6,620 स्कूल ऐसे जिनमें स्कूल में पीने का पानी मुयस्सर है। मैं नहीं कह रहा साफ पानी, पीने का पानी इनमें मुयस्सर है। अच्छा, फिर एक कमरा स्कूल जिसका कहते हैं ना 1 मैन डेमोल्यूशन स्क्वाड, 1 मैन आर्मी, तो एक कमरा जो स्कूल है उसकी तादाद इनमें से 4,000 ऐसा है। कमरे में कितने बंदे बैठ सकते होंगे? 10, 20, 30, 40 टीचर कितने बैठ सकते हो? 1-2 कुर्सियां रख के कितनी क्लासें लग सकती हैं? तो आप ये अंदाजा लगाइए, किसी शायर ने कहा था टूटे किवाड़ और खिड़कियां, छत के टपकने के निशान, दरवाजे हैं रोशन नहीं, पर्दे नहीं, चिलमन नहीं, एक शम्मा तक रोशन नहीं, वो खाना है खाली है दिल। स्कूलों का हाल ये है जी। अब फिर जो सरकारी खर्चा मैंने पहले कहा था दोस्तों को नवाजने का ये प्रोग्राम है। आप देख लेंगे कि किसके साथ मुआहदा होगा, ये भी कौम देख लेगी, और किन को ये मिलेगा ठेका, ये भी कौम देख लेगी। सरकारी खर्चे पर तलबा को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, उन्हें दाखिले के लिए कितने पैसे रखे गए? 16 अरब रुपए रखे गए। यानी हद है ना, पूछने वाला ही कोई नहीं है। ना कोई एंटी करप्शन का महकमा है, ना कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज हैं जिनके कोई दांत हो, इनको कोई डाल सकें, कोई जबड़ा डाल सकें, और खाए पिए जा रहे हैं और उड़ाए जा रहे हैं, मौज उड़ाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाइए जी, ये बिजली और एनर्जी, इतनी तकरीरें दोनों भाइयों ने की। मैं अब वादे याद नहीं दिलाना चाहता, कौम ने रटे हुए वादे। पिछले दिनों तो एक पीपल्स पार्टी की एक जगह खड़े होकर उन्होंने कहा ये जी नाम तजवीज़ कीजिए, ये नहीं दे सके लोड शेडिंग को खात्मा। अच्छा, मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, आज मैं सिर्फ बजट की बात करना चाहता हूँ। जो पिछला डेवलपमेंट फंड था उस पर 90 अरब 9 करोड़ रुपए रखे गए थे, उनमें से पता है कितने खर्च हुए? ये सारे मुआहदे वो कर रहे हैं जो खास तौर पे चाइना की कंपनी है और खास तौर पे एक बैंक है एग्जिम बैंक, उसके साथ और उसके जरिए से सारे मुआहदे हो रहे हैं। क्यों? ये सवाल है। फिर एक बड़ी क्यों आ गई सामने, सारी दुनिया को पता है क्यों। किकबैक्स, इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे, जाहिर है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, फिर जहाँ से खाने पीने का प्रोग्राम मैं आसान कर देता हूँ, आपने अंग्रेजी बोली जो नहीं समझ आएगी लोगों को। खाने पीने का जहाँ से प्रोग्राम चल सके, और पेट जो कभी इंचों में होता था फिर फुटों में गया, गजों में गया, अब बर्रे-आज़मों में पेट फैला हुआ है, जिसके सारे बर्रे-आज़मों में असासे होंगे, बर्रे-आज़मों तक पेट है ना, और पता नहीं उसको आसमान तक बुलंदी देना चाहते हैं या असफल साफिलीन तक, जमीन के निचली तह तक लेके जाना चाहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह खातून, माँ, बच्चा, फैमिली आया है। बिल्कुल, ये 3 लफ्ज आए हैं। माँ और बच्चे की जो सेहत है, जच्चा बच्चा जिसको कहते हैं, उसके लिए कितने पैसे रखे गए? सर अच्छे खासे होने चाहिए, अरबों में होने चाहिए जी। 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ जी। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के लिए इसके मुकाबले में कितने रखे गए? 49 करोड़ 19 लाख रुपए। सारी माएँ, सारी बहुएं, सारी बेटियां, सारी बहनें, उनके लिए कितने पैसे? उनसे डबल से ज्यादा
49 करोड़ 19 लाख रुपए रखे गए। अच्छा, फिर इनके लिए सेहत कोई चीज नहीं है, तालीम इनके लिए कोई चीज नहीं है, जच्चा बच्चा इनके लिए कोई चीज नहीं है, वुमेन डेवलपमेंट कोई चीज नहीं है, लेबर कॉलोनी कोई चीज नहीं है, इनके लिए इलाज कोई चीज नहीं है। इन्होंने जो टैक्सियां खरीद के बांटने के लिए जी गुलुओं में बंटती है ना जी, बिल्कुल 35 अरब रुपए फिर रख लिए गए। 35 अरब रुपए। मैं सवाल उठाना चाहता हूं, पीली टैक्सी से लेकर इनकी ग्रीन वैगन तक, इनकी सब टैक्सी से लेकर किसी और रंग की वैगन तक, पंजाब में ट्रांसपोर्ट का मुझे बताओ, पंजाब वालों किसी जगह बुरा हाल हुआ, शुरू कर लें आप साउथ पंजाब से, आ जाएं आप नॉर्थ पंजाब में, जाएं आप सेंट्रल, किसी जगह ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ है? कहीं नहीं है। स्पीडो बस भी निकाली, वो भी फेलियर। अच्छा, फिर ये कर क्या रहे हैं? अब ये जो पूरे ट्रांसपोर्ट का बजट है ना जी, उसमें से अबाउट 90% जी 0.8% के करीब पूरे पंजाब की ट्रांसपोर्ट बेहतर करने पे लगेगा, और 90% बजट किधर ले जाया जा रहा है? मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर। अच्छा, एक मैंने अलहदा निकाल के रखा होता है यूथ के लिए। यूथ 65% है मेरे मुल्क के, बिल्कुल हम यूथ नहीं रहे, उसे अगली स्टेज पे चले गए। जो यूथ है उसके लिए जो 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो ज्यादा इंटरनेट पे अपने स्कूल की तैयारी करते हैं। इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे वो ज्यादातर उनके कोर्सेज उनको डिसेमिनेट करते हैं, स्कूल भिजाते हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं। किसी जमाने में टेस्ट पेपर हुआ करते थे मोटे मोटे, पकड़ के हम इम्तिहान के दिनों में रट्टा मारते थे, अब उसकी जरूरत कोई नहीं रही, इनके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। और इंटरनेट के इस्तेमाल पे पंजाब कहते हैं आगे बढ़ो और पढ़ो। किस तरह पढ़ो? इंटरनेट के इस्तेमाल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ये जो इस मुल्क की 65% आबादी है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, जो रिमेनिंग 35% आबादी है जिसमें ये सारे हुक्मरान शामिल हैं, वो तो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते, ना उसके नज़दीक जाते हैं। अच्छा, फिर एक और पहलू जो बहुत ही खतरनाक है वो ये है कि प्लानिंग नहीं है। इतनी बड़ी आबादी का सूबा है, उसमें एक आदमी कहता है ये कर दो, मैं तुम्हें ये देने के लिए आ रहा हूं, दूसरा आता है कहता है बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ओए मुल्तानियों बोलो, ओए पिंडी वालों बोलो, गुजरावालियों बोलो। दुनिया में किसी जगह आपने बैनुल बर्रे आज़मी पेट से, मुफादात से है, कट से है, कमीशन से है, करप्शन से है, किकबैक से है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसके बावजूद अगर आप खामोश रहना चाहते हैं तो मैं तो नहीं आपको रोक सकता, मैं सिर्फ बोलने के लिए कह सकता हूँ, अपने हक के लिए बोलिए, बजट के दौरान बोलिए। टीचरों को मार पड़ चुकी है, क्लर्कों को मार पड़ चुकी है, एपका को मार पड़ चुकी है, और जो भी बाहर निकलता है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैं चाहूंगी कि वो जो शहीद बीबी ने मरियम नवाज को क्या रिलीफ दिया था उस पर भी आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ इख्तिलाफी नोट में। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। रमजान से रातों को इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया,
हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। दिया था उसके बारे में तो आपसे जाने ही जानेंगे, लेकिन आजकल जो GIT चल रही है और कल आपने कहा था कि 2 लोग हैं उनकी हाजिरी होने वाली है। एक को तो समन हो गया जी, बिल्कुल समधी को हो गया, छोटे समधी को हो गया, बड़े समधी को होना है। और बड़े समधी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से 10 सवालात हैं जिनके ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मेरा 4 अशरों का तजर्बा है, फौजदारी कानून को भी मैं देखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं देखता हूँ। वो 10 सवाल हम पब्लिक से शेयर कर लेते हैं कि ये 10 सवाल हैं जिनके गिर्द नवाज शरीफ साहब से सवालात किए जाएंगे। सवाल नंबर 1,
पंजाब का वजीर खजाना बनने से पहले आपकी आमदनी और जायदाद कितनी थी, ये पहला सवाल है जी। इसलिए कि पाकिस्तान में कानून है एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा वो बताएगा अपने आमदनी के ज़राए और उनको फिर मैच किया जाएगा उसके तर्ज ज़िंदगी से। पहला सवाल जो नवाज शरीफ साहब के लिए है JIT के सामने वो है कि पंजाब का वजीर ख़जाना बनने से पहले आमदनी और जायदाद आपकी कितनी थी। दूसरा सवाल नंबर 2, वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद आपकी आमदनी और जायदाद में कितना इजाफा हुआ, ये दूसरा सवाल है जो वज़ीर आज़म साहब से पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 3, वज़ीर आज़म बनने से पहले आपके बेटों और अहले खाना डिपेंडेंट्स उनकी आमदनी और जायदाद कितनी थी, ये सवाल तो बनता है ना, इसलिए कि जो अरबों खरबों रुपए, अरबों तो छोटे हो गए अब, खरबों रुपए और अरबों के जरिए अरबों रुपए और फिर यहाँ से कमाए हुए भी थे, वो सारा सवाल नंबर 3 ये बनता है वज़ीर आज़म बनने से पहले आपके बेटों का कारोबार, उनकी आमदनी और कितनी थी। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल ये बनता है कि आप इस बात पे बड़ा फख्र करते हैं वज़ीर आज़म साहब कि आप तीन दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। कुछ आपके नज़दीक बड़ी खुशकिस्मती की बात थी लोगों की, और आपके जो 3 स्टूजेज हैं वो ये कहते हैं कि किसी और मुल्क में होते तो आपकी पूजा होती। पूजा तो मेरे मज़हब में जायज़ ही नहीं है, पाकिस्तान में आपकी पूजा कभी भी नहीं होगी। आप पाकिस्तान छोड़ के गए तो वहाँ भी आपकी पूजा कोई नहीं हुई। 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद आपके बेटों के पास इतनी जायदाद कहाँ से आई। अब ये जो चौथा सवाल है वो आ गया कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद बेटों की इतनी जायदाद कहाँ से आई। ये तीसरा और चौथा सवाल, इनमें एक दूसरे के जवाब और सवाल वो दोनों पोशीदा है। 5वां सवाल, अच्छा 5 सवाल प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें उस पे जाने से पहले, या मैं सवाल कर लेता हूं फिर आप चले जाइएगा। 5वां सवाल ये, क्या इत्तफाक फाउंड्री 10 मरले की जायदाद थी? 10 मरले की जायदाद, आपको यकीन नहीं आएगा ये अरबों में कैसे बिक गई। इत्तफाक फाउंड्री 10 मरले की जायदाद थी, अरबों रुपए क्या सोने के अंडे देती थी ये, और इसके साथ एक बर्फ खाना भी था। बड़ी हिम्मत वाली एक खातून एंकर है, उन्होंने शुक्रिया के साथ एक वीडियो है उनकी, वो प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा। इत्तफाक मिल्स इन लाहौर। मेरे राइट पे ये कैमरामैन दिखाएगा, जिस इत्तेफाक फाउंड्री की बात होती है कि जी वो तो कब से बंद पड़ी है, जद्दी पुश्ती अमीर थे, इसको बेचा था, इससे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद जाके बड़ी बड़ी स्टील मिल्स लगाई हैं, कहीं कतर में स्टील मिल्स लगाई हैं, कभी दुबई में स्टील मिल्स लगाई हैं, और ये जो बातें होती थी ये है वो बेसिकली इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्क शॉप लिमिटेड। ये हमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका रकबा होगा वो 10 मरले का इसका रकबा होगा। फैक्ट्री की जमीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। ऊपर से नीचे तक ये आप देख सकते हैं, ऊपर तो अब यहाँ पे किसी की रिहाइश है, लेकिन नीचे का बहरहाल ये जगह थी जहाँ पर ये ऑफिस बनाया गया था, ये इत्तेफाक फाउंड्री एंड वर्कशॉप लिमिटेड। तो ये वो इत्तेफाक फाउंड्री है जिसको बड़ी अहमियत हासिल है, जो एक तारीख साज फाउंड्री है जो कि सोना उगलती है, जो कि सरिया नहीं उगलती, जो सोना उगलती है, और उसने सोना उगला और इस फाउंड्री से पता नहीं कितनी स्टील मिल्स लग गई, कितनी स्टील मिल्स बिक गई, कितनी स्टील मिल्स खत्म कर दी गई, और फिर नई स्टील मिल्स लग गई। सर यहाँ पे तो 700 केनाल 800 केनाल कुछ भी नहीं था, सिर्फ 10 मरले की। हम सवाल सजेस्ट कर रहे हैं जी। और एक ब्रदर टीवी का बहुत ही इनसाइट वाला एक था वीडियो, वो हमने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 6 जी, जो इनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनके गुनाह बख्शे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो इनके कहने के मुताबिक इनके अब्बा जी बड़े मजहबी आदमी थे। ज़ाहिर है मजहबी आदमी वही होता है जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से ज़िंदगी गुजारे और कुरान में जो अहकामात आए हैं उनके मुताबिक चलने की कोशिश करे। तो इसी को उर्दू में शरीयत एक लफ्ज़ है कहते हैं। तो शरीयत एक, नंबर 2 बेटे, नंबर 3 बेटियां, और उनको नज़रअंदाज करके पोते को किस खिदमत के एवज इतने पैसे
नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम यानी अब्बा जी ने दे दिए और दादा ने दे दिए इन बच्चों के जिनके पास जायदादें। ये नवाज शरीफ साहब के लिए छठा सवाल है। सातवां सवाल सियासत के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सियासत के अलावा आपने जिंदगी भर में कौन सा कारोबार किया जिसकी वजह से ये तर्ज जिंदगी है आपका आपके आगे पीछे गाड़ियां, नौकर, महल सरा, और बाकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जिधर आप जाते हैं आपके आगे पीछे जहाज़, आपके आगे पीछे मजलसें, आपके जलसे, आपके खर्चे। तो सियासत के अलावा पूरी ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब आपने कौन सा कारोबार किया, ये आपका सातवां सवाल है। आठवां है आपकी ये जो स्टाइल ऑफ लाइफ है, शाहाना तर्ज ज़िंदगी है, आपकी शाहाना रिहाइश है, सारे के अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। और एक दफ़ा मुशर्रफ के दौर में एक रेफरेंस बना था, उसको कहते थे राय विंड रेफरेंस। उसके पेपर्स हैं कुछ, किसी वक्त हम आपको दिखाएंगे। ये कहते हैं जी कि हम हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, उसके एवज बाकायदा पैसे जमा करा के लोग बाहर गए थे, वो कभी दिखा देंगे हम। नौवां सवाल ग्वालमंडी से दुबई, फिर अजीजिया से जद्दा, और फिर जद्दा से मेफेयर, मनी ट्रेल बता दें। ये आसान सवाल हैं, इनमें कोई गंभीरता है, इसमें बेइज्जती किसी की होती नहीं है। ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल कि आप बताइए। और 10वां सवाल, ये अब्बा जी की फाउंड्री एंड वर्क्स जो अभी दिखाई गई, ये सोने की कान और ये हीरे की वर्कशॉप, ये किस तरह से बनी, ये इनको बताना पड़ेगा। इसलिए कि इस अरसे में ये कहते हैं कि जो मैं पॉलिटिक्स में आया, मैं कारोबार से अलग हो गया था। ये 10 सवाल उनके लिए बिल्कुल ठीक है। और भी स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इख्तिलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है।
लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया रिलीफ दिया था। बाबर साहब, जो शुरू से हम बात कर रहे हैं, देखिए एक सवाल उठा हुआ है, पाकिस्तान पूरा उसको डिस्कस कर रहा है कि क्या मरियम नवाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है GIT में। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जो इन्होंने किया वो सारी दुनिया को मालूम है। सखर में मर्दाना तफ्तीश का उन्होंने सामना किया कई महीने तक। और मेरे गांव के साथ बिल्कुल सिहाला जो पुलिस कॉलेज के साथ एक कैंप हाउस था, उसको इन्होंने बना के तफ्तीश गाह वहाँ पे भी मर्द तफ्तीश करते रहे बीबी साहिबा से। 1994 में जब उनकी गवर्नमेंट आई तो मोहतरमा ने एक कानून अमेंड कर दिया, ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें 167 को तब्दील करके उन्होंने उसमें 2 नई तरामीम डाल दी। एक है ज़ैली दफ़ा 5 और दूसरी है ज़ैली दफ़ा उसकी 7, जिनमें ये कहा गया कि कोई मर्द किसी भी मुकदमे में खातून से तफ्तीश नहीं कर सकता जब तक साथ एक लेडी इन्वेस्टिगेटर ना हो। ये वो रिलीफ है जिसकी वजह से, लेट मी बी वेरी फेयर टू एवरीबडी, मरियम साहिबा को ये GIT की कंपोजिशन नहीं बुला सकती जब तक वो इस्लामाबाद के किसी थाने को अपने साथ एसोसिएट नहीं करती, FIA में से कोई खातून साथ नहीं लेती। तो मरियम साहिबा को इस तरह से, जिस तरह से उनके घर के मर्द हजरात को बुलाया जा रहा है और मजीद को बुलाया जाएगा, इस तरह से मरियम साहिबा शामिल तफ्तीश नहीं की जा सकती। दिस इज वन। अच्छा, ये वो बीबी थी जिसने ये कानून बनाया जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम को रिलीफ मिल रहा है। उनके साथ इन्होंने जहाज़ों से उनकी नकली तस्वीरें, वो जो बयान करने के काबिल नहीं है, वो तकसीम करवाई, उनको गालियां पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उनके लिए वो जावा गोई हुई जिसकी 70 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट में होते हुए नवाज शरीफ साहब उनके बारे में क्या कहते रहे, जरा प्रोड्यूसर साहब कौम को दिखाइएगा कि बीबी ने इनके लिए क्या किया, इन्होंने उसके साथ क्या किया था। आज जो 3 स्टूजेस हैं कौम को कहते फिरते हैं वज़ीर आज़म का एहतराम होना चाहिए। बीबी तब वज़ीर आज़म थी जी, और एक आदमी सदर थे, वो फौत हो गए लगारी साहब, उन्होंने बीबी से बेवफाई की थी लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क के सदर थे। दोनों के बारे में क्या कहते हैं, जरा दिखाइएगा, बात को आगे बढ़ाएं।
ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी खान की सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। ये पाकिस्तान के गद्दार शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। आप हमारे बस पीछे पीछे चलो तो काम बन जाएगा। जियाउल हक पाकिस्तान मर्दे मोमन मर्दे हक। सो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो, ही इज वेरी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। वो सारा उन्होंने कहा है ना, कोई थोड़ा ही हमने बना के थोड़ा ही चलाया। ये कोई एक्टर नहीं था ख्वातीनो हजरात, जो जिस तरह मिमिक्री होती है, नकल होती है, मेरी भी नकल बनती रहती है। तो ये तो वो खुद बोल रहे थे। वो क्या कह रहे थे खातून के बारे में, क्या कह रहे थे? वो जो वजीर आजम थी, एक जो पाकिस्तान का सदर था, ब्लॉटलेस कैरियर लेके गया, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग उसके जिम्मे नहीं है। उनके बेटे हमारे दोस्त हैं, उनके बेटों के बेटे हमारे बच्चों के क्लास फेलोज हैं, और इसलिए हम जानते हैं उस फैमिली को। और आप देख लीजिए कि ये क्या करते रहे, और बीबी ने इनको कैसा जवाब और कैसा रिलीफ दिया, और पाकिस्तान की औरतों को कैसा रिलीफ दिया, ख्वातीन के थाने। और रात को भी किसी थाने में सिवाय लेडीज पुलिस स्टेशन के, बेशक साथ लेडी हो, रात को भी थाने में खातून को नहीं रखा जा सकता। ये और जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि तमाम जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें और उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा इख्तलाफी नोट से। और बाबर साहब, आप हमेशा आवाम से कुछ शेयर करते हैं, प्लीज़। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसको काफ़ी है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, और दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जते नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। एक बार और तू यसरब से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं ये कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। सलाम या नबी, मैं ये कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा है, इसको काफ़ी है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।